Good morning, students. My screen is visible. Yes, beta. Aishwarya, Amisha. Okay. Now I think we completed 4 practical in last week. This was our list of practical. In this, image compression last to last lab में मैंने explain किया था. That was a theoretical practical. In the last lab, after that, in the third lab, I suppose, reading and display gray and color images of different formats we did. Last week, अपन ने RGB to HSI conversion, image arithmetic operations, along with that, image histogram and histogram equalization. उस टाइम ये हुआ था कि मैंने कहा था लैब क्विट करके आई एम लीविंग एंडिंग द मीटिंग एंड रीजॉइनिंग. काफी कम बच्चों ने किया था, लेकिन ये 4th प्रैक्टिकल भी अपन लोगों ने कर लिया था. मैं जस्ट वापस से एक बार और समराइज करती हूँ. देन टुडे वी विल डू 5th practical, that is image filtering in spatial and frequency domain. We are just waiting for 2 more minutes for the students. Otherwise, we'll start. Okay? With the image filtering in spatial and frequency domain. Okay, now we are starting. We are not waiting more time. Let we execute. Now, today we'll try 5th one. और अगर 6th भी हुआ तो देखेंगे. वैसे अपने sufficient हो गए हैं. Now, just within a 5 minutes, I am recalling the whatever we did in the last lab. First of all, we started with a study of image compression that is going to be used for the pixel size to be get reduced with respect to not compromising the quality of the picture. So compression is to improve the compression efficiency, lossy to lossless compression, region of interest coding, error resilience and all. इसमें अपन ने image format, image literary survey देखा था. And apart from this, I explain you the basic wavelet transform, and this was the basic block diagram of image compression that you need to explain whenever this will come in a theory or the practical point of view. Image used to be DCT, then quantizer, zigzag, entropy, then channel for storage, then entropy decoder, reserve zigzag, quantizer, ID, CT, and here. ठीक है? This was the practical in which we just convert our gray image into the color images, different formats. Sometimes it's used to be very bright, sometimes it is going to be bit dark.
This was the coding which I told you to note it down, and then this was our standard image, means base image, and this color images we changes. Okay. RGB to HSI कन्वर्जन में इमेज अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे. इन दैट व्हाट यू नीड टू डू, जो भी तुम्हारी इमेज है दैट इज उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हमें देखने को मिल रहे थे. लाइक पर्टिकुलरली सी, पहले कलर टू ग्रे कन्वर्ट हुआ. फर्स्ट प्रोग्राम जो था वो कलर से ग्रे इमेज कन्वर्जन था. यहाँ जैसे ग्रे से कलर में इमेज हो रहा था, यहाँ कलर से ग्रे में इमेज कन्वर्जन. सेकेंड ऑपरेशन में this camera one was there, a rise painting we took, and when we are adding it the image coming this. ये अमन ने प्रैक्टिकली भी करके देखा था, जिसमें कैमरामैन वाली इमेज तो हमें मिल गई थी, rise.png नहीं मिल पाई थी, but फिर भी somehow we shall try best. After that, the third operation which you used to do in this practical is subplotting, means कलर इमेज को ग्रे में कन्वर्ट करना, डार्क ग्रे, फिर उसकी ग्रे में भी उसकी दूसरी शेडिंग्स करना. दैट इज गोइंग टू बी हियर. एंड इसका वाइस वर्सा तो नहीं कहेंगे, बट फोर्थ प्रोग्राम जो इसमें था दैट इज द कलर डार्क इमेज को कन्वर्ट करना इनटू द सम लाइट. दैट इज कॉल योर RGB to HSI. ठीक है. That is means in your third practical, for sub practical you need to perform, and these are the images. If programming लिखने का भी मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में सफिशिएंट टाइम दिया था, और एग्जीक्यूशंस का भी 2 लैब हो गई थी अपनी लास्ट थर्सडे, 2 आवर्स चली थी. ठीक है. आफ्टर दैट द इमेज हिस्टोग्राम वाज देयर, and image histogram and histogram equalization. In this what is happening, अविचल ने जो इमेज लेके करा था उसमें यही था कि जो भी मेरी थोड़ी सी ब्लड सी या डार्क इमेज है दैट इज गोइंग टू बी दिस, और उसके रिस्पेक्ट में हम उसका ग्राफ भी मिल रहा था. तो लेकिन उस टाइम ग्राफ नहीं मिल रहा था, बट इस तरह से इमेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें हिस्टोग्राम्स में. मीन्स फ्लक्चुएशन और ब्लड चीजें जो हैं वो, ये चीजें तुम लोग तुम्हारे मोबाइल फोन में भी देखोगे कि पर्टिकुलरली so many options used to be there, filter images and circuitry. So that is going to be change with मतलब तुम्हारी जो ओरिजिनल इमेजेस रहती है उससे चेंज होके वो इस तरह से आ जाते हैं. ठीक है. यहां तक हमने कर लिया था. अब अगर इसमें किसी को डाउट है सो जस्ट आस्क मी, देन विल मूव फर्दर. Should we move further? Hemu, Divyanshi, Aishwarya, Amisha. Yes, ma'am. Should we move ahead with the fifth practical? Yes, ma'am. Okay. तो तुम्हें यहाँ तक प्रैक्टिकल कर लेने. अब पैंडेमिक तो आगे से आगे बढ़ रहा है. तो like my target is to complete your DIP lab by the end of May. After that I will give you 5 to 10 days time to complete this. Please do the pre-labs, and if you are facing any problem ask me or Himanshu. Himanshu is teaching you DIP. DIP theory हिमांशु सर पढ़ा रहे हैं. ठीक है ना. चलो, तो अब ये 4 प्रैक्टिकल्स अपने हो गए हैं. फिफ्थ में जो रहता है इसकी थ्योरी भी है. आई जस्ट सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स हैव सम like doubts in the spatial and frequency domain and all. So basically it is a study practical again. लेकिन ये मैंने तुम्हें उस टाइम नहीं कराया था बिकॉज
बेसिक तुम्हारे जो RGBV और दूसरे फंक्शंस हो, ये इमेजेस वगैरह तुम्हारे आ गए क्या? सुमन, ऐश्वर्या, अमीशा, किरण, ट्राई करो इनको लाने की. कुछ भी डाउट होगा तो जैसे नेक्स्ट लैब भी रहती है, तो यू कैन शेयर योर स्क्रीन. डोंट बी हेजिटेट और स्केयर. ठीक है. फाइन. So what we mean by image filtering in spatial and frequency domain, we will do here. See, it is my suggestion. Don't just copy paste. Just try to understand also. But some images which you are unable to download, you can take the screenshot from my side. This much liberty and help I will do. So what we mean by image filtering? That is going to be, this operator is used in the linear image. That is a linear image filtering process that is applied in a spatial domain, that is, or in the frequency domain. That is the particular filtering applying in the inverse transform. For example, filters are low pass filters, high pass filters, इस तरह से रहते हैं. Basically यही है कि image filtering process which is going to apply in spatial or a frequency domain. If I am talking regarding the spatial domain, then the image plane is just directly manipulating the pixels. Or if I am talking about the frequency domain, then it is applied to the Fourier transform filtering and then apply the inverse Fourier transform. Like example, low pass filter, high pass filter है. Low pass for the smoothening and high pass for the edge enhancement. Fine. तो image filtering का मतलब यही है कि whatever image I have, if I just want filtering, see, what do you understand filtering? If you studied DSP, suppose, so in that, filtering means whatever input I am giving, in that filtering होकर लो और इधर हाई पास सिग्नल्स जाने चाहिए, बाकी वहीं स्टक हो जाने चाहिए. The same is image filtering is whatever image I am taking or whatever image in the form of input I have, that is going to be filtered, means some brightness aspects, the original effects that used to be filtered out. Fine. So that is the meaning of your image filtering. Now what comes by the spatial? Spatial domain is nothing but directly or in the image plane by the direct manipulating of the pixels. और अगर मैं frequency domain की बात करूंगी तो वो Fourier transform आ जाएगा. ठीक है. Now the convolution process in a spatial domain. Convolution process in a spatial domain की जब हम बात करते हैं तो convolution is nothing but when I have a two input and I convolve means I multiply them. Usage of convolution mask, kernel H with symmetric shape and size W cross W. ठीक है. ये एक एग्जाम्पल लेके इसमें बताया है कि अगर मेरी इमेज का साइज W क्रॉस W है, where my W is 2K plus 1, that is going to be apply HSI. ये तुम्हें लिखना तो रहेगा इसमें, ये इमेजेस में फिर बताया ना इलुस्ट्रेशन. दिस इज माय इमेज एंड दिस इज इमेज कन्वोल्यूशन कैसे हो रहा है, ये that comes under here and it this X is going to implant. That is my IS, that is my IP.
The convolution kernel can, I just suggest you to note it down, क्योंकि some कुछ चीजें इसमें DIP में है वो तुम थ्योरी में पढ़ोगे तब क्लियर होगी. लाइक ये जो हमने वैल्यू लिखी है कन्वोल्यूशंस की, ये ऐसे लिख लो. इट इम्प्लाइज द स्कैनिंग ऑफ द सोर्स इमेज IS pixel by pixel, ignoring the first and the last k row and column that is going to be there. See, it come here, it can then get here and like. Computation of the intensity value in the current position, that is going to be Ij of the destination image ID. The convolution mask K is positioned spatially with its central element over the current position. Take the screenshot of this. You can better, I just suggest you to note down. I am giving you time. Don't worry. बेसिकली इस प्रोसेस में ये बताया है कि ये मेरी ओरिजिनल इमेज है. फिर इसमें अगर हम इमेज फिल्टरिंग में स्पेशियल या फ्रीक्वेंसी डोमेन जिसमें जाते हैं, यहाँ जैसे स्पेशियल का ये बता रहे हैं. सो हाउ दैट ओरिजिनल इमेज इज गोइंग टू इम्प्लांट ऑन द इफेक्ट, जो भी हमें फिल्टरिंग या जो भी डालना उसमें, एंड देन हाउ इट दिस इमेज. कई बार देखते हैं ना छोटी इमेज बड़ी हो गई है या ब्राइटनेस में चेंजेस आए हैं. सो दैट इज द first and last k rows and columns that is going to be. Convolution mask is positioned spatially with its central element over the current position. Complete it. When you've done, you just inform me. Aishwarya, Amisha, Gunjan, Hemu, Priyanshi, Suman, Avichal. आज इतने कम बच्चे कैसे हैं? हाँ बोलो गुंजन. ठीक है. हो गया क्या बेटा? एक्चुअली ये थ्योरी प्रैक्टिकल है. इन दैट यू ओनली नीड टू बी राइट द थ्योरी. इसको मैंने बीच में इसलिए डाला इस बार आज क्योंकि अपन लास्ट 3 लैब से परफॉर्म कर रहे थे एंड एग्जीक्यूशंस वाज देयर. तो इट विल मेक यू लाइट आफ्टर द 2 ओनली प्रैक्टिकल्स आर देयर दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्म. हो गया बेटा? Okay, Emu. Yes. Now see, after this spatially positioned change, the convolution kernel can have also non-symmetrical shapes like central reference element that is not positioned in the central of symmetry.
Convolution with the kernels is applied in a similar way, but what such example will not be presented in current level. ठीक है, that's it for the ये जो हमने अभी पढ़ा ये था कन्वोल्यूशन प्रोसेस है ना, स्पेशल डोमेन. नो नीड टू राइट डाउन दिस लाइंस. ऊपर का जो हमारा डेटा है सफिशिएंट है. ग्रेजुअली यू विल स्टडी ऑल द थिंग्स इन अ थ्योरी. इट इज गोइंग टू बी मोर क्लियर. नाउ इट कम्स इमेज फिल्टरिंग इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन. सी what we mean by image filtering in a frequency domain. कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कोई भी है 1 2 0 0 to 1 and j k n या कैपिटल n स्मॉल k स्मॉल n like that, it is going to be there. The inverse discrete, or we can say the first dimension discrete Fourier transform, that is called DFT, of an array of n real complex number is an array of n Fourier transform is given by 1 0 1 2 0 0 1 j c. ये मेरा इनपुट है. इसको DFT के बाद हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इस तरह से हो रहा है. 2D DFT is performed by applying the 1D DFT on each row of the input image and then on the each column of the previous result. See here I will suggest you to note down. स्क्रीनशॉट तो ले लो, लिख भी लो इसको, क्योंकि ये चीजें तुम्हारे थ्योरी में जब होगी और क्लियर होगी. इसमें बेसिकली इमेज फिल्टरिंग कुछ भी नहीं है. जो तुम्हारे मोबाइल फोन्स में स्मार्टफोन्स में फिल्टरिंग के ऑप्शंस नहीं रहते हैं, ब्राइट होना आईज ब्राउन होना नहीं, इस तरह के जो भी ऑप्शंस है, दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस. वो दो तरीके से होते हैं, एक स्पेशल डोमेन और एक योर फ्रीक्वेंसी डोमेन. स्पेशल डोमेन में जो होते हैं वो इस तरह से कन्वॉल्व होते हैं, उसकी ये ज्योमेट्री है. एंड अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में होते हैं तो सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से है, फिर हमने उसको डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में किया. सो दैट इज गोइंग टू बी, वो यहाँ नीचे शो है तुम्हारी इमेजेस में कैसे क्या होगा. ठीक है. देन द 2D IDT perform applying the 1D DFT, that is going to be जो भी मेरी इमेज है, that is each row of previous result. Basically what happen in this is the set of complex number which are the result of DFT may also be shown by polar coordinate. Set of magnitudes represent the frequency power spectrum, that is by the original array, and DFT and its inverse usually perform the fast Fourier transform approach. ठीक है. और 2D जो है हमारा image processing का, where 220 nm complexity is going to be there. I just suggest you to write down this paragraph. इसके बाद इसकी implementation detail आएगी. Implementation detail में yes of course इसका मैं जरूर तुम्हें कहूंगी कि स्क्रीनशॉट ले लो और इसका प्रिंट लगा देना. इसमें देखो ये ओरिजिनल इमेज है कैमरामैन की, और ये सेकेंड इमेज है ओरिजिनल जिसमें मून दिख रहा है. फिर C और D जो है, that is a magnitude spectrum and this is a central logarithmic magnitude spectrum. इस इमेज के ये आए हैं और इस इमेज के ये. ले लो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो. वाई डी सो एक्सप्लेनेशन में जो मैं समझाऊंगी वो इसी से रिलेटेड. जब हमारा मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हो रहा है तो वो स्कैटर्ड इस तरह से है, और जब सेंट्रल लॉगरिथमिक मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हो रहा है तो वो इस तरह से सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रल से स्कैटर्ड हो, और ये किसी भी डायरेक्शन में. स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब पहले ये वाला पैरा लिख लो, फिर मैं इम्प्लीमेंटेशन बताती हूँ. मीनवाइल आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस. ऐश्वर्या, अमीशा, अभिचल, दिव्यांशी, गुंजन, हर्षिता, Yes, ma'am. किरण, Yes, ma'am. प्रियांशी, सुमन. Present, ma'am. Present, ma'am.
एक और कौन रह गया? हेमू। मैम। श्रेया अभी आई है क्या? When the lab is about to end. हाँ श्रेया। जल्दी लिखो बेटा, थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन मुझे और बताना है, so that at least this theory 5th practical भी completed और नेक्स्ट में हम 6-7 कंप्लीट कर देंगे। वो तुम्हारा परफॉर्म वाला रहेगा। उसके बाद एक और टास्क मैं बता रही हूँ, इट इज नॉट योर थ्योरी लैब। सो आफ्टर परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल्स 1 week break I will give you, and then I will ask each students to share your screen and show the implementation of each practical, like last lab में जैसे अभी चल कर रहा था, है ना? तो वो उसके लिए तुम प्रिपेयर रहो, तुम्हारे लैपटॉप पे हर प्रैक्टिकल को करके देखो। तुम्हारा जो इंटरनल असेसमेंट वाइवा कह लो या इंटरनल असेसमेंट फ्रॉम माय साइड है, वो यही रहेगा। एक तो तुम जो लैब फाइल डाउनलोड मतलब पिक्स खींच के भेजोगे, और सेकेंड मतलब जो भी मार्क्स इंटरनल है, एक्सटर्नल तो अपन बाद में देखेंगे, उसमें जैसे 45 है सपोज इंटरनल, so 30 marks is of particularly your file which you will send, और हार्ड कॉपी तुम्हें लॉकडाउन के बाद आके सबमिट करनी रहेगी। इंफॉर्मेशन विल बी डिलीवर्ड, सो कीप योर फाइल सेफ एंड नाइसली मेंटेन। 30 मार्क्स मान के चलो उस फाइल के वगैरह के रहेंगे। 15 मार्क्स तुम्हारे परफॉर्मेंस जो लाइव डेमो मैं तुम्हारा देखूंगी स्क्रीन शेयर करके। अब इसमें एक और पॉइंट आता है विच माय डियर स्टूडेंट जनरली यूज टू बी आस्क्ड कि मैम काफी बच्चे तो अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, जैसे हम 58 हैं, अमंग दैम 22 आज जैसे 12 ही हैं। सो ये सब मेरे कंसिडरेशन में है, मैं अटेंडेंस भी लिख रही हूँ, नितेश सर से भी मेरी बात होती रहती है, तो ये सब पॉइंट्स तुम्हारे क्रेडिट हो रहे हैं, डोंट वरी। But yes, of course, the day when I will tell you to show your demo on your laptop by showing screen, that is a main criteria. ये सारे प्रैक्टिकल्स जो थ्योरी वाले रहेंगे, सपोज 1st और 5th प्रैक्टिकल इज अ थ्योरी, फाइन, तो तुम्हें सिर्फ 5 ही प्रैक्टिकल हैं जो रन करके मुझे दिखाने हैं, फाइन। चलो अब इम्प्लीमेंटेशन डिटेल की जहां तक बात आती है, क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन में? स्पेशल डोमेन फिल्टर्स जो रहते हैं, मैं पैरेलली जैसे जैसे समझा रही हूँ तुम लोग लिखते भी जाओ। लिखने से मेरा पर्पस यही रहता है कि तुम लिखते हो तो तुम्हें एटलीस्ट वट एवर थिंग्स आर देयर वो तुम्हारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाता। वेयरएज सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप लेके कहीं बैठे हो तो माइंड इज समवेयर एंड बॉडी इज समवेयर, वो नहीं होना चाहिए। सो लो पास फिल्टर विल ऑलवेज हैव द पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स, देयरफॉर द रिजल्टिंग फिल्टर्ड इमेज विल हैव पॉजिटिव वैल्यू। सो इससे क्या होगा? यू मस्ट एंश्योर द रिजल्टिंग इमेज फिट्स इन द डिजायर्ड इमेज। मतलब हमें ये जरूर ध्यान रखना है स्पेशल में कि जो भी मेरी ओरिजिनल इमेज है और उसको अगर मैं स्पेशल डोमेन में फिल्टरिंग कर रही हूँ तो वो उस साइज में 0 to 255 वाले साइज में फिट होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू एंश्योर दिस you must ensure the coefficient of a low pass filter that is sum to 1. If you are using integer operations, pay attention to the order of operation. Usually the division should be the last operation performed in order to minimize the rounding error. ये तो बात होगी तुम्हारी लो पास फिल्टर के लिए। अगर हाई पास फिल्टर है, so both positive and negative coefficients are going to be there, and you must ensure the final result in an integer that is going to be in between 0 to 255. There are 3 possibilities to ensure the resulting image which is going to be fits the destination range. That first one is to compute. ये इसके सिग्निफिकेंट बताएं, जैसे 0 0 S 1 2 मैक्स, करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में स्टार कॉमा है, दिस
This is the Technical University of Suijnipua Computer Science Department in the formula above. ये formula इन लोगों ने apply किया. Represent the sum of positive filter coefficients. Then sum of negative filter coefficients को हमने फिर relate किया. The result of applying low pass high pass filter, it always lies in the interval this, where the L is a maximum image gray level. लिखो जल्दी, लिखो या स्क्रीनशॉट लो, जैसे भी तुम्हें लगे, क्योंकि इतनी थ्योरी तो लिखनी है. इसके अलावा एक्स्ट्रा तुम्हें कुछ मिलती है. ये सबसे ही कंक्रीट और ऑप्टिमाइज मैंने इसमें लिया. पहले हम ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है. इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज द कन्वोल्यूशन प्रोसेस इन स्पेशल डोमेन एंड इमेज फिल्टरिंग इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन. ये बेसिक डेफिनेशन थी. अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि स्पेशल डोमेन फिल्टर्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या साइजिंग रहती है, क्या फॉर्मूला है. और एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी नेपो का अपन ने एग्जांपल भी दिया है कि इस फॉर्मूले से उन्होंने ये किया. हो गया बेटा? बेटा ये जो पीडीएफ नहीं है, ये डीओसी है, बट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर. दैट इज द माय पैटर्न ऑफ स्टडी. दैट वो मैं जब शेयर भी करूंगी, जब तुम्हारी फाइल सबमिट हो जाएगी और करेक्शन और क्रॉस चेकिंग, दैट माइट बी. अदरवाइज जो मैं लेक्चर्स भी लेती हूँ विथ फुल पोटेंशियल, लास्ट सेमेस्टर में भी मेरे पास दोनों फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स थे. आई टुक 40 to 50 lectures and I must not tell, but whatever I taught them, exactly whatever assignment I have given, and same thing came in RTU. They were shocked that paper made by me, but it was not. I put my all effort in my live lectures. And okay, fine. I will share why I don't share this at right now, because then students जो थोड़े बहुत attentive और अच्छे हैं वो भी reluctant हो जाते हैं कि वैसे भी YouTube पे ये सारी चीजें तुम्हें YouTube पे भी मैं अपलोड करती हूँ टाइम टू टाइम, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है. सीक्वेंस में थोड़ा डिले हो सकता है, बट सारे लेक्चर्स तुम्हारे वहां रहेंगे ही. सेकेंडली गूगल क्लासरूम में मैं बिफोर योर एग्जाम जरूर आई माइट थिंक टू शेयर, बट वो होता क्या है, एक बार मैंने किया है, वो आगे से आगे तुम्हारे जूनियर के पास ये पहुंच जाएगा, इसीलिए मैं इसको शेयर नहीं कर रही हूँ. जस्ट जो भी तुम्हें डाउट है, या तुम्हें अगर 10 से 15 मिनट भी लग रहे हैं, I am ready to give you. I have my patience with my dear students. Like teaching is my passion, not my profession. कि नहीं बस क्लिक क्लिक फिनिश कराना. ठीक है? तो तुम्हें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है या तुम्हें जैसा भी है, that I will let you know. And that I am doing for your betterment. अभी भी जैसे मैं एनर्जी मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे को, टेक्सटाइल वाले बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं मेरे से, लेकिन I just told them to watch my video on a YouTube, and any doubt you have they can ask. They told same thing कि share your PDF with us. So I told I will not share. I will explain you because I don't want my student to be handicapped. ठीक है? ये लिख लिया क्या बेटा? नहीं प्रियांशी, नॉर्मल पेजेस में तो मत बनाओ. अभी 10 से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग रहा है. बाकी मैंने कल खुद मेरे बेटे की नाकोड़ा वाले से सारी फाइलें और ये होम डिलीवरी पे अवेलेबल हो रहा है. ठीक है? तो नॉर्मल पेजेस पे तो मत बनाओ, क्योंकि फाइनल तुम्हारी जब फाइल जमा होगी, सपोज 75 में से तुम 72 73 मार्क्स चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हारी सबसे फर्स्ट इंप्रेशन होता है तुम्हारी फाइल. सेकेंड फिर जो वाइवा प्रेजेंटेशन जो भी है. So file should be should deserve the marks which I will give you. So your presentation on the file writing should be very good. है ना? मैम एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, मैं विलेज में रहती हूँ तो नहीं, कॉलेज के नेम वाले नहीं हो तो भी चलेगा. नॉर्मल जो प्रैक्टिकल पेजेस आते हैं ना, मैम यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, नॉर्मल नोटबुक भी नहीं मिलती है. तुम कहाँ रहती हो?
मैम मैं इधर बनेड़ा के आगे छोटा सा विलेज है, वहाँ रहती हूँ मैम। बाकी हॉस्टल में रहती हूँ तो सब सामान हॉस्टल पड़ा है मैम। ठीक है, देखो वैसे इतना राइटिंग वर्क नहीं है, बाद में जैसे भी है, ठीक है। हाँ हाँ मैम। क्योंकि ये है कि अभी तो 31 तक या तब तक तो पैंडेमिक रहेगा, तो हाँ मैम। तब तक अपनी लैब हो जाएगी, और मुझे लगता है नेक्स्ट लैब में ही शायद कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर जरूर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लैब 20 मई तक हो जाएगी, तो तुम्हें समेशन तो करना रहेगा। चलो अभी लिख लो। बाकी जैसे भीलवाड़ा में तो होम डिलीवरी अवेलेबल है, अगर नाकोड़ा वाला या दूसरे और बुक सेलर्स जो हैं उनको जो भी चीजें हमें चाहिए हम फोन करें। मैंने मेरे बेटे की एनसीईआरटी की बुक्स, रजिस्टर्स, ये सब होम डिलीवरी पे मंगवाए। बट बनेड़ा इज बिट फार। अगर तुम्हारा इधर भीलवाड़ा का रहता तो अभी सब अभी भी मिल रहे हैं, पहले भी मिल रहे करो फिर तो। अगर थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा तो वेट करने का कोई सेंस नहीं है, अब फिर तुम्हें नॉर्मल पेजेस पे ही लिखना है, बट प्रिंट आउट सारे कलर्ड ही निकालने रहेंगे, है ना। वो तो चलो तुम बाद में भी निकालोगे, चल जाएगा, जब तुम्हें हार्ड कॉपी जमा करनी है। यहाँ पे भी जो इमेजेस है लेते टाइम तुम्हें ध्यान रखना। चलो नाउ सी, ये जल्दी लिखो, टाइम हो रहा है, इसमें फिर मीटिंग एंड करना रहेगा, थर्ड ईयर में क्लास भी है। देखो जिससे पॉसिबल हो रहा है, कॉलेज के पेजेस हैं, दूसरे पेजेस हैं, लिख लो, बट जहां तक हो प्रैक्टिकल फाइल वाले पेजेस करते हो तो मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। ये इमेज तो मैंने तुम्हें पहले बोली दी थी। फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर कैसे करते हैं ये लिख लो तुम बेटा। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर विजुअलाइजेशन एंड प्रोसेसिंग पर्पस टू कंसीडर द प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेस लाइक 0 0 कोफिशिएंट, ठीक है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय क्रॉस स्वैपिंग 4 quadrant of Fourier transform channel, that is going to be, we can pre-process the source image, ठीक है। अब देखो इसमें लिया है i and integer I equals to 0 where my I is image row I plus plus। ये हम लूप का फॉर्मूला लगाते हैं, j is 0, j is image and j plus plus। ij is I plus j is going to be there, minus image dot at ij, image dot at ij this, ठीक है। ये कर लो, देन वी आर फिनिशिंग। सो इट वाज अवर थ्योरी प्रैक्टिकल। नेक्स्ट लैब में हम परफॉर्म करेंगे मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन एंड थ्रेशोल्ड बेस्ड इमेज सेगमेंटेशन। इमेज को जैसे हम सेगमेंट करते हैं तो वो क्या होता है, ये दोनों प्रैक्टिकल इन द नेक्स्ट लैब। आई जस्ट ट्राई टू फिनिश। ये तो लिख लो। अभी चल तुमने वो करके देखे हैं क्या 6 और 7 प्रैक्टिकल? यस मैम, जो अगर मेरे पास जो इमेजेस थे उनसे करके देखा था हाँ तो हो क्या था। और नहीं, तो इमेज सेगमेंटेशन वगैरह हो रहा है मॉर्फोलॉजी? यस मैम, हो तो रहा है। और मैम जो ये इमेजेस जो आपने जैसे वो राइस वाली और ये यूज करी थी ना, हाँ तो हो सके तो मैम वो शेयर कर देना, क्योंकि हमारी दूसरी इमेजेस से वो हो नहीं रहा है वो ढंग से, नहीं, तो इसलिए। तुम उसमें क्या करो, सी आई विल शेयर यू वन थिंग। मैंने उस दिन भी देखा था, मैं बोलना भूल गई थी। जैसे यहाँ पर तुम राइस डॉट पीएनजी डाल के देखो, ओके। ठीक है। अब इसमें ये वाली जो इमेज है देखो, यस माइट बी दिस विल वर्क, यस ओके। मैम, ऐसा हो रहा है ना। हाँ, कि अपन जो इमेज यूज कर रहे हैं वो पूरा, मतलब जो बैकग्राउंड है वो पूरा एक इमेज का कलर है, और इसमें जो खाली राइस है वो ही इमेज है, मतलब इसमें कोई बैकग्राउंड है ही नहीं, इसलिए ये वर्क कर रही है। हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो या तो मैं नेक्स्ट लैब जब स्टार्ट होगी तो जो यस तुम्हारा यस। थर्ड प्रैक्टिकल है, थर्ड एंड फोर्थ, उसके स्क्रीनशॉट लेने के लिए 2-2 मिनट तुम लोगों को दे दूंगी, ऐसा करें? मैम स्क्रीनशॉट से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो नॉर्मल वाली इमेज जो हमारे पास दूसरी इमेज है वैसी कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, तो बेटर मतलब जैसे ये जो भी आ रहा है, क्योंकि हाँ जैसे मैंने हाँ अभी हाँ। भी बोला है तुम लोगों को कि मैं सारे ही स्टूडेंट्स के यहाँ कहीं, मैंने उस दिन जैसे दिक्कत आ रही थी ना, उसके बाद लैब ऐड होने के बाद देखी थी, सेम द इमेज विच आई हैड इन दिस, आई इस तरफ राइट साइड में शो हुई थी।
थोड़ी सी ब्लड ये वाली हो जाएगी मैम, ये वाली हो जाएगी मेरे ख्याल से। तो एक काम तुम ये करो, वो जो थर्ड और फोर्थ प्रैक्टिकल है उसमें जो इमेज मैंने ली है और उसमें जो डेस्टिनी वो आ रहा है पर्टिकुलर, आई मस्ट से, जैसे ये मॉर्फोलॉजिकल है, इसमें जैसे मैंने जो इमेज दी है इमेजेस /Leena_dark.png, ये क्या, ये तुम गूगल पे डालोगे तो ये सेम इमेज आ जाएगी। ओके। और मैम वैसे ये वाला तो हो रहा था, लेकिन इसमें नहीं, ये इसमें ग्राफ नहीं आ कहाँ रहा हो रहा था। था बेटा, अच्छा, बाकी एक्चुअली जो थोड़ी ग्राफ सी ही इसका इक्वलाइजेशन शो करा। सी, इमेज हिस्टोग्राम इज, दिस इज माय इमेज, and by using histogram, this operation, that is IMHIS T equal, the image is coming this. Now equalization mein I am just visualizing, if my image is this, the graph is going to be a bit narrow, and when I make my image by using histogram like this, it is going to be changes like this. ठीक है, ओके। मीटिंग एंड का नोटिफिकेशन आ गया है। तो ये करो कि जो प्रोग्रामिंग में जो इमेज मैंने डाली है वो गूगल पे सर्च करोगे, एग्जैक्ट नहीं तो मिलती जुलती मिल जाएगी। ठीक है, ये वाला प्रैक्टिकल तो समझ में आ गया। इमेज फिल्टरिंग मींस स्पेशल और फ्रीक्वेंसी डोमेन के थ्रू हम इमेज में इफेक्ट्स लाते हैं। ये जो डायग्राम्स हैं, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, इसका मीनिंग यही है कि वो जो ब्राइटनेस या सेंट्रल मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा चेंज हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं वो इन्होंने शो किया। ठीक है, सो टिल दिस 5 प्रैक्टिकल यू डू। और जैसे इमेजेस में दिक्कत आ रही है तो मैंने बता दिया, जो भी इमेज कोडिंग में है उसको एज इट इज ऐसी गूगल पे डालो तो कहीं ना कहीं तुम्हें मिलती जुलती थोड़ी ये वाली तो होनी चाहिए। नहीं हो तो फिर नेक्स्ट टाइम मुझे बताना। तो वो लेकिन एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हाफ मार्क्स तुम्हारे इंटरनल के तुम्हारे लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके मैं देखती हूँ, वो उस टाइम रन होना चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक। मैं तुम्हारी लैब देखती हूँ, जैसे भी रहा वेडनेसडे नहीं तो थर्सडे में से लेती हूँ, प्रोबेबली शायद वेडनेसडे लूंगी मैं, आई विल इन्फॉर्म।